Okay, student. Now let us discuss about the some technical words related with SHM. What are those? One is displacement, other one is amplitude, or you can say amplitude. Third one is velocity and acceleration, time period. Okay, these things, acceleration, time period. Okay, what are these things? Let us try to suppose this is a circle, whose center is O, radius is what? Radius is A, x O x dash is a diameter, and y O y dash is another. X O x dash and y O y dash are two mutually perpendicular diameters, and O is the center. OX radius of the this circle is known as is taken. We have taken A, radius of the circle. Suppose the particle starts from here at any instant, it is at P. क्या है? यहाँ से शुरू हुआ, A अभी कहाँ पर है? P पर. Let us say the position of this is what? The position of this point P is xy. You already know about the coordinates. The coordinates of point P is xy. What we are taking here? Suppose the object was at x and it is revolving or taking the path like this. It means it is moving at the circumference of this circle. Then this circle is known as circle of reference. What? This is the circle of reference. Okay, and that this moving particle, moving body is known as point of reference. What? Point of reference. जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मूव कर रहा ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस कर रहे हैं. एट फर्स्ट इट वाज एक्स, एट एक्स, देन नाउ एट दिस इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट. सपोज टी टाइम पर ये कहाँ है? पी पर है. पहले शुरू किया कहाँ से? एक्स. तो क्लियर हो गया कि दिस सर्किल, विच टाइप ऑफ सर्किल? द सर्किल or the circumference of the particle moves and the circumference path of this circle, then this circle is known as circle of reference, and the point which is revolving, which is moving, is known as point of reference. Then what I have told to you, at first it was at x, now it is at y. Suppose this makes an angle theta. Theta is what? That is x O P is theta. Okay. Then now this is the projection here. Let us say this to be M, to be N. Then OM is equal to how much? X, and ON is equal to how much? That is y. Okay. Then what is the displacement? Displacement is the distance or distance of the object from the mean position. क्या बताए थे? आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मीन पोजीशन यहाँ है. ऑब्जेक्ट अभी हमारा कहाँ है? यहाँ ऐसे स्विंग कर रहा है, ऐसे. तो अभी हमारा O से जहाँ पर है, यहाँ पर है सपोज P पर, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. ओके. The displacement is the distance of the body from the mean position. Okay. Then what we are taking here? A moving body
whose path is what on this circumference at first was at x, now at any instant time or at any instant or at any time it is at p and making an angle theta, and its position is xy. Okay, then its projection on x axis will be OM, that will be equal to x. Projection on y axis will be ON equal to y. Okay, OM equal to x and ON equal to y. Okay, suppose it comes here from x to y, is this point y, then this will cover this distance. Y coordinate will be what? That will be a, and it is moving in this direction with angular speed omega. Then when it will come here, a displacement of y axis will be 0. यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? y का से 0, फिर यहाँ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस से यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, है ना? तो displacement is what? The distance of the projection of P on y axis. Y axis पर जो क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, A यहाँ से यहाँ तक, फिर A जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये कहाँ रहेगा? यहाँ पर आ जाएगा, y आएगा ना, फिर A वाला यहाँ तक आएगा तो y कहाँ तक आ गया? यहाँ तक, फिर A यहाँ पहुँचेगा तो y फिर 0 पर आ जाएगा। y का पाथ कैसे हो रहा है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना? समझ रहे हैं ना? y का पाथ जब ए पी यहाँ पर आ गया, p यहाँ पर आ गया तो x पॉइंट कितना हो गया? x पॉइंट 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये x, जब when it is point p is at y, then x equal to 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, और y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैक्सिमम यहाँ पर। फिर ये अगर घूम के यहाँ आ गया तो x एक्सिस पर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, और y पर फिर कहाँ हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो this path which is being followed, then this will be in simple harmonic motion and this will be said to be displacement. The distance of the object from mean position is known as displacement. Now let us see here with the help of this figure. This is theta, then this is theta. Now let us take sin theta. Sin theta. Sin theta equal what? For this is P, this is H. Okay? For this angle, this value is P, this value is H. Then here PM, H, and this is OP. Okay? OP. And PM is what? PM equal to y and OP equal to radius A. Then what we can say? Y equal to A sin theta. Okay? And what we know? Theta omega equal to theta by t. Omega is what? It is rotating at angular speed omega. Then omega is theta by t. Already we know. Therefore theta equal to omega t. Okay? Then here we can write A sin omega t. Then what I have told to you, that this a body executing simple harmonic motion will have a graph as sin theta. Let us see here, है ना? sin theta का है ना, ग्राफ आ गया ना? ऑब्वियसली कैसा होगा? इस नेचर का, साइनसॉइडल बताए थे अभी आपको कैसा नेचर होगा, ऐसे ऐसे। तो अभी लास्ट ही में बताए कि जिस साइन थीटा और कॉस थीटा ही एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो रिपीटेड है, बॉन्डेड है। इस मोशन को हम लोग, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, इसलिए इस मोशन को हम लोग क्या कह रहे थे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, देन यू हैव अंडरस्टूड y इक्वल टू a sin थीटा रे a sin ओमेगा t. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. y is what? That is displacement. It will increase from 0 to a
a to 0, 0 to minus a to 0. And I am showing it. I will show this thing with the help of मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑल्सो. ये चीज दिखाएंगे आपको कि कैसे वेरिएशन है. ओके, देन y इक्वल टू a sin थीटा, और we will take which type of relation, y इक्वल टू a sin थीटा और a sin ओमेगा t. ओके, नाउ come at again amplitude. Amplitude is what? Let us talk about this expression. Then if theta is now 90 degree, ये आपका थीटा 90 कहाँ हो जाएगा? ये बढ़ के यहाँ तक. This will be, then sin theta will be maximum इक्वल टू 1. ये मैक्सिमम वैल्यू होता है ना. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. तो पुटिंग साइन थीटा इक्वल टू 1, व्हाट वी गेट? y इक्वल टू a. तो y वाज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. एंड दिस इज द व्हाट? दिस इज विच टाइप ऑफ वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, है ना. तो आई हैव टेकन साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. then by maximum value of y will be a. This is the maximum value. ओके, तो हमारा y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा? यहाँ तक, है ना, या यहाँ तक. मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, या यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? बाउंडेड है यहाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा. पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे, निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड यही दोनों जगह का. इफ बट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन साइन थीटा विल बी 0, एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू, दिस वाज मैक्सिमम वैल्यू. नाउ sin theta, when sin theta is equal to y equal to a into 0, that is 0. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y. y का सबसे कम वैल्यू कहाँ होगा? यहाँ पर, ओरिजिन पर. कहाँ होगा? सबसे क्या बताए थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, जो कि ये क्या हो गया? सर्किल का हो गया. ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, और कम से कम कहाँ? मीन पोजीशन पर रहेगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज व्हाट? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज y इक्वल टू a. कहाँ होगा मैक्सिमम वैल्यू? यहाँ पर होगा y, या यहाँ पर होगा, है ना. तो ये आपका ये वाला चीज़ हम क्या बताए थे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जब होता है तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना, यहाँ तक. और ये वाला चीज हमारा क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड, है ना. मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जहाँ मैक्सिमम जा रहा है वो यहाँ पर का एम्पलीट्यूड. और यहाँ से वो किसी भी समय देख लिए यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया? एट एनी इंस्टेंट द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज एट विच पॉइंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा क्या हो गया? y. किसी समय देख लिए कितना दूरी पर है? y पर. डिस्प्लेसमेंट इज y. ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू एम्पलीट्यूड. नाउ कम एट वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? ऑलरेडी यू नो. v is what? That is rate of time rate of displacement. मतलब d by dt of what? y. डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं. ऐसे भी आप पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन. डिस्टेंस का चेंज जो पोजीशन का हो गया उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं. देन हियर डिफरेंशिएशन और टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. नाउ let us take this value d by dt of what? That is a y equal to a sin theta. Theta is not the function of t, a t
then we take a sin omega t, a sin omega t. Then already you know the differentiation, this is constant, then a is take outside d by dt of sin omega t. Okay, then differentiate a d sin omega t with respect to what? D omega t, and differentiate d omega t with respect to dt. Okay, then this is what? A sin omega t with respect to omega t, that is cos omega t. Okay, and d omega t with respect to dt is what? That is omega. Then we can say omega a cos omega t. Okay, this is the difference a. Let us say this equation to be 2, this is 1, and now from here what we take? Sin omega t, value of sin omega t is what? That is y by a, and here this is omega a, cos omega t will be written as 1 minus cos theta equal to 1 minus sin square theta, that is 1 minus sin square omega t. Okay, now this is what? Omega a 1 minus sin square omega t, that is y square by a square. This is your y square by a square, and now this is what? Omega a root under a square minus omega by a square. Okay, take this side off, तो आपका ओमेगा ए इसका बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो गया? 1 बाई ए, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. लेट अस कैंसिल इट आउट. देन ओमेगा इज व्हाट? ओ ए स्क्वायर माइनस वाई. दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई ही in terms of a and y, displacement and an amplitude, and this is in terms of omega. Then say this to be third equation. Okay, now let us take the maximum minimum value. Okay, have you understood? We have just differentiated displacement. Differentiating displacement, we have found out the value of velocity. Now we have two equations, v equal to what? V equal to omega s sin omega t, omega s cos omega t, and the other one is what? Omega into a square minus 1 square. Take, say this to be second equation, this to be third equation. Okay, now erase it. Then let us take y equal to, if y equal to what? If y equal to a, that is what? Maximum displacement. A is the maximum displacement. I haven't already explained कि y का maximum value कितना होता है? A होता है. So if y equal to a, then v equal to what? V equal to omega into a square minus y square. Y square equal to a square. That means omega into 0. That is 0. So when displacement will be maximum, velocity will be what? Velocity will be 0. Okay? जब डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होगा, y क्या है? मैक्सिमम. y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, a इज द मैक्सिमम वैल्यू. इफ y इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, देन वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज मिनिमम. समझ रहे हैं ना? आपको ग्राफ से भी बताएंगे, ये समझ लीजिए पहले. y जब क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो वेलोसिटी मिनिमम होगा. एंड इफ
y इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, दैट इज कहाँ होगा, मीन पोजीशन पर होगा। देन v इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस y इक्वल टू जीरो, दैट इज ओमेगा ए स्क्वायर, दैट इज ए ओमेगा, एंड दिस इज योर मैक्सिमम। ओके, तो क्या देख रहे हैं आप, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम देन वेलोसिटी इज मिनिमम। डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है तो वेलोसिटी सबसे कम है, और जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है ना। अब यहाँ आपको हम थोड़ा सा पेंडुलम से समझाते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या देख रहे हैं कि जस्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऐसे, ये यहाँ है ऐसे, ये हमारा ऐसे। तो आपका क्या हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू ए। y हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, लेकिन y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ। y जब यहाँ तक, ये कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, लास्ट एंड तक चला है, कहाँ तक, एक्सट्रीम तक, तो ये y इक्वल टू ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, कहाँ है, लास्ट एंड तक आ गया। तो वेलोसिटी यहाँ क्या आ रहा है, जीरो, यहाँ v इज इक्वल टू जीरो। जब ये यहाँ से आपका यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, y इक्वल टू हेयर, यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया ना। मीन पोजीशन पर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो पर है। देन हेयर v इज व्हाट, दैट इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम। देख रहे हैं, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, एम्पलीट्यूड पर है, तो वेलोसिटी जीरो है। और यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, मीन पोजीशन पर है, मतलब मिनिमम दूरी पर है, y जीरो पर है, तो आपका वेलोसिटी मैक्सिमम है। गौर करिए, ये यहाँ से गया, यहाँ तक आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से लौट जाता है, इसका मतलब इस जगह वेलोसिटी क्या हो गया है, जीरो हो गया, तब ना ये लौट रहा है। और यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन कर लेता है, यहाँ पर जैसे ही आता है देखिए यहाँ से तेजी से भागेगा, है ना, यहाँ से तेजी से भागेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y इक्वल टू ए, मैक्सिमम हो गया, ये सबसे दूर आ गया। तो जब सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगा, यहाँ तक तेजी से आए, फिर यहाँ आके रुक जाएगा, वेलोसिटी कितना हो गया जुड़ा, फिर ये नीचे आएगा, फिर इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहाँ तक होगा और यहाँ तक, और डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है वेलोसिटी जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है वेलोसिटी जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, मीन पोजीशन पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम है, जिसके कारण इधर आ रहा है तो तेजी से इधर भागेगा, इधर आ रहा है तो यहाँ पर आके तेजी से मैक्सिमम स्पीड से भागेगा, है ना। गौर करते होंगे, यहाँ से आया ऐसे, यहाँ धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है, यहाँ से तेजी से भागेगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर धीरे होते 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 तेजी हो रहा है, तेजी हो रहा है, यहाँ फिर तेज होगा, ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो इन दिस टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अप टू द relation between what, displacement and velocity. In next lecture I am going to explain the relation between displacement as well as velocity and as well as acceleration. Relation between displacement, velocity and acceleration. Okay. Then in next lectures I will explain this with the help of graphs. Okay. Then now let us stop here. Again in next lecture I am going to explain the relations. Okay.